سب سے پہلے بات کریں گے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پہلگام واقعے کی مذمت۔ پاکستان کی سفارتکاری کام کر گئی، بھارت ہاتھ ملتا رہ گیا۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف خواہش پوری نہ ہو سکی۔ سلامتی کونسل کے بیان میں بھارت کی جگہ صرف تمام متعلقہ حکام کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ سلامتی کونسل میں بیان امریکہ نے تجویز کیا تھا، متفقہ بیان منظور نہیں ہو سکا۔ پاکستان نے سفارتی کوششوں سے متنازع الفاظ شامل نہیں ہونے دیے۔ پاکستان نے لفظ جموں کشمیر بھی بیان میں شامل کرایا۔ بھارت چاہتا تھا لفظ پہلگام شامل ہو تاکہ یہ تاثر ہو کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت ہڑپ کر چکا ہے۔ پہلگام لفظ شامل کرانے میں ناکامی کے ساتھ بھارت فوری اظہار مذمت بھی نہیں کرا سکا۔ پہلگام میں حملہ 22 اپریل کو ہوا تھا۔ مذمتی بیان 4 دن بعد 26 اپریل کو جاری ہوا۔ یو این اہلکار کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کو خطے کی صورتحال پر اظہار تشویش ہے۔ بھارت اور پاکستان صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کریں۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پہلگام واقعے کی مذمت۔ پاکستان کی سفارتکاری کام کر گئی ہے، بھارت ہاتھ ملتا رہ گیا ہے۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف خواہش پوری نہ ہو سکی۔ سلامتی کونسل کے بیان میں بھارت کی جگہ صرف تمام متعلقہ حکام کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ سلامتی کونسل میں بیان امریکہ نے تجویز کیا تھا، متفقہ بیان منظور نہیں ہو سکا۔ پاکستان نے سفارتی کوششوں سے متنازع الفاظ شامل نہیں ہونے دیے۔ پاکستان نے لفظ جموں کشمیر بھی بیان میں شامل کرایا، جبکہ بھارت چاہتا تھا کہ لفظ پہلگام شامل ہو تاکہ یہ تاثر ہو کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت ہڑپ کر چکا ہے۔ پہلگام لفظ شامل کرانے میں ناکامی کے ساتھ بھارت فوری اظہار مذمت بھی نہیں کرا سکا۔ پہلگام میں حملہ 22 اپریل کو ہوا تھا۔ مذمتی بیان 4 دن بعد 26 اپریل کو جاری ہوا۔ یو این اہلکار کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کو خطے کی صورتحال پر اظہار تشویش ہے۔ بھارت اور پاکستان صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت پانی روکنے کی ہر کوشش کا قومی طاقت سے جواب دیں گے۔ پانی ہماری لائف لائن ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اپنی سلامتی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے۔ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ کسی کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی مہم جوئی ہوئی تو 2019 کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ہمارے مشرقی ہمسائے نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام تراشی کی۔ Water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline. Its availability would be safeguarded at all costs and under all circumstances. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. On the contrary, our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. Kashmir is the jugular vein of Pakistan. Pakistan shall continue to support the right of self-determination of the Kashmiri people. دو قومی نظریہ گودی میڈیا کا مزاح کا خیز پروپیگنڈا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دو قومی نظریے کی اہمیت اجاگر کی تو بھارتی میڈیا سٹ پٹا گیا، روایتی واویلا شروع کر دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا روایتی جھوٹے پروپیگنڈے سے تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتا۔
मुसलमानों की जिंदगी के तमाम पहलू हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म व रिवाज, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक नहीं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी और बेमिसाल जद्दोजहद की। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। दुनिया के कोई भी गैर जानिबदार अफराद पहलगाम वाक़े की तहकीकात करे, पाकिस्तान ताउन करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़। पहलगाम ड्रामा बेनकाब और हक़ाइक़ सामने लाना चाहते हैं। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। भारत ने कुछ किया तो हर पाकिस्तानी लड़ने के लिए तैयार है। अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत और रॉ मुलविस है। भारत की दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। कलअदम BLA की एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत की। पाकिस्तान का किसी तरह का भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है इंडियन वाक़े से। हम इसमें बहुत क्लियर हैं कि अगर कोई भी न्यूट्रल लोग इस वाक़े की इंक्वायरी करते हैं तो पाकिस्तान उसमें भरपूर तावन करेगा। हम चाहते हैं कि इस ड्रामे को बेनकाब करें। हम चाहते हैं कि असल हक़ाइक़ सामने आए। ये दुनिया को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि दहशतगर्द कौन है। हर दफ़ा जब वहाँ पे कोई ना कोई बाहर का लीडर आया होता है उस टाइम ये वाक़या क्यों होता है। हम 100% तैयार हैं, उनसे ज़्यादा तैयार हैं। हम जंगजू कौम है, वो जंगजू कौम नहीं है। हम एक चीज़ में फिर बड़े क्लियर हैं कि चाहे वो 1 या 10 मिनट भी ला के बिठा लें, हम इंशाल्लाह उनसे अकेले और रॉ ये दो नाम नहीं, एक नाम है। हमारे पास पिछले जो वाक़यात होते रहे बलूचिस्तान में, KPK में, उसकी सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट हमारे मुल्क में दहशतगर्दी जो हो रही है और थी उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। कश्मीर जो है वो एक ताज़ा इलाका है और ये UN की रेजोल्यूशंस के मुताबिक उसको हल होना चाहिए। उस स्टांस से हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के जारहाना सिफारतकारी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चीनी सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात की। तुर्किया, मिस्र और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार का असल चेहरा सफारती मैदान पर बेनकाब। पाकिस्तान का दोस्त ममालिक को एतमाद में लेने का सिलसिला जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चीनी सफीर जियांग ज़ाइडोंग से मुलाकात हुई, जिसमें इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक करीबी राब्ते जारी रखने पर इतफाक और ताज़ीराती शराकतदारी मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। इसहाक़ डार की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से भी मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान अमनो सलामती का ख्वाहा है और हर हाल में अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने आज़रबाईजान, तुर्किया और मिस्र के वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राब्ते भी किए। इसहाक़ डार ने मकबूजा कश्मीर में होने वाले ताज़ा वाक़यात पर आलमी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। कहा, भारत के यकतरफा इक़दामात और पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे की मज़म्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि किसी भी मुहिमजोई का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। यकीन मुहकिम है कि पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। फैसला किया गया है कि कौमी वक़ार और इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लिए बेहतर होगा कोई पंगा न ले। पहलगाम वाक़े के बाद 10 मिनट में FIR होना प्री प्लान नहीं तो क्या है। सिंध तास मुआहदा कोई मुअत्तल नहीं कर सकता। इज्जत डिग्नी किसी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। मैं उनको यही कह रहा हूं, हर एक से मुझसे बात हो रही है कि दे बेटर नॉट। अगर वो करेंगे वी विल हैव नो चॉइस बट टू रिस्पॉन्ड वेरी बैडली। पहलगाम में वाकया होता है और घंटों दूर पुलिस स्टेशन में 10 मिनट के अंदर FIR दर्ज हो जाती है। इज इट नॉट प्री प्लान? इंडस वाटर ट्रीटी जो 64 साल पुराना मुआहदा है उसको इनअबेंस कर दिया। वो ट्रीटी ना अमेंड हो सकती है ना टर्मिनेट हो सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ कंट्री।
भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता और ना ही किसी किस्म के इक़दाम में पहल करना चाहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू, कहा खित्ते में दहशतगर्दी का असल शिकार तो पाकिस्तान है। भारत हम पर इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहा है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मगरिब के इमा पर 1980 में अफगान जंग में शमूलियत माजी के हुक्मरानों की गलती थी। खित्ते में दहशतगर्दी दहाइयों कबल मगरबी ममालिक बिलखसूस अमेरिका की इख्तियार करदा पॉलिसी है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक कहते हैं कि पहलगाम बहाना था, सिंध तास मुआहदा असल निशाना है। भारत भूल में ना रहे, इस पर फैंटास्टिक चाय नहीं फैंटास्टिक मार पड़ेगी। पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि तहकीकात करा लें, लिख लें, ये नहीं कराएंगे। शवाहिद होते तो 10 मिनट में FIR दर्ज ना होती। भारत बयानिए की जंग हार चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है, सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। जिस भारत ने पानी बंद करना था वो अब पानी खोलने पर मजबूर है। वो बयानिए की जंग हार चुके हैं और उनके जर्नलिस्ट रो पीट रहे हैं कि हम अपना केस डिफेंड नहीं कर पाए। जहाँ इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ड्रामा रचाया गया है, तो आओ इन्वेस्टिगेशन करा लो, पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये कभी भी नहीं कराएंगे। आप मेरे से लिखवा लें, अगर इनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते तो समर साहब 10 मिनट के अंदर FIR दर्ज ना होती। पुलवामा का वाकया होता है, उसके बाद ये कश्मीर का स्टेटस, स्पेशल स्टेटस ले लेते हैं, बहाना बना के उसकी आड़ में। ऐसा ही है। इस दफा पहलगाम की आड़ में इंडस वाटर ट्रीटी टारगेट था। पाकिस्तान ने इनका ब्लफ कॉल किया। बड़े अहमक लोग हैं ये भारत वाले। ये एक बॉलीवुड की दुनिया में रहते हैं। अब लास्ट टाइम तो टी फैंटास्टिक थी, इस दफा फैंटास्टिक मार पड़ेगी। भारत ने मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद आर्मी जारहियत और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में इश्ताल अंगेजी शुरू कर दी है। गुज़श्ता रोज़ दरिया झेलम में गैर मामूली पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से दरिया में दरमियानी दर्जे की तुग़यानी आई है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल। भारत की जानब से मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और इसी की आड़ में भारत ने आबी जारहियत का भी आगाज़ कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ दरियाई झेलम में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफा देखने में आया, चूँकि मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाकों से दरियाई झेलम का पानी आता है और भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके उड़ी में डैम्स भी बना रखे हैं और पहले पानी को रोका गया और उसके बाद यह जो है पानी को छोड़ा गया, जिसके बाद यहाँ पर जो है दरमियाने दर्जे की तुग़यानी देखने में आई और ज़िली इंतज़ामी की जानब से शहरियों को यह हदायत की गई कि दरियाओं के करीब जाने से इज्तनाब बरता जाए। और दूसरी जानब भारत ने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके वादी लीबा के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इश्तियाल अंगेज़ी की और फायरिंग की, जिसके बाद जो है पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और दुश्मन की जो तोपें हैं वो खामोश हो गई। वहाँ पर भी किसी भी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई, लेकिन जो ज़िली इंतज़ामिया है ज़िला जैलम वैली की, वहाँ पर जो है मुल्क में जो इमरजेंसी सूरत हाल है इसके पेश नज़र जो तमाम छोटे बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर जो है स्टाफ को हम वक्त तैयार रहने की हदायत भी की गई है।